Assalamu alaikum, respected sir. My name is Muhammad Ali and I am a student of pre-9th class in Thal Public School, 22 MB, Khushab. I want to understand radioactive isotope and radioactive decay. Please explain it. Thank you, sir. Mr. Ahmed, Yes, I am here to deliver a lecture on radioactivity to class 9 students. But what brings you here? sir, thank you so very much for having me here. I have been watching your videos, they are so interesting. I came all the way from LUMS here to understand this topic and sit with you and enjoy your company. Okay. Okay, Muhammad Ali, your question is about radioactivity, radioactive isotopes, and radioactive decay. You will have to understand a few terms first. What is radioactivity and what is unstable nucleus? And there is a couple of other terms also which you should be understanding before formally understanding the concept of radioactivity. Acha, allow me to speak in both the languages, Urdu and English, so that the students of Urdu medium school should also be able to understand. Radioactivity is a combination of two words, radio and activity. Radio is a Latin word which means radius. Radius आपको पता है ना, सर्कल का जो रेडियस होता है, सर्कल के सेंटर से जो एक लाइन उसके पेरीमीटर को, सर्कमफ्रेंस को टच करती है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, उसको रेडियस कहते हैं. तो रेडियस लैटिन में रे को कहते हैं, रे या रेडिएशन को कहते हैं. और एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब रेडिएशन और रे एक्टिव हो और उसमें लाइक एक्टिविटी मीन्स दे आर डूइंग समथिंग, दे आर मूविंग, दे आर चेंजिंग. तो व्हेन रेडिएशन इज एक्टिव, व्हेन रेज आर एक्टिव, तो उसको कहेंगे हम रेडियो एक्टिविटी. सर, मेरा एक क्वेश्चन था इधर. सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे एंड रेडिएशन, रे एंड अ बीम ऑफ लाइट? अभी आप जिक्र कर रहे थे रेडिएशन. रे इज अ सिंगल line of light moving in a straight line. Yes. And beam is a collection of rays. I mean, if ray is represented by an arrow, a bundle will be represented by a beam will be represented by a bundle of arrows. So many rays collectively are called beam. So that is the difference between a ray and a beam. And your other question was? Ray and radiation. Sir. Ray and radiation. Okay. Ray is basically a path on which light travels. Light is energy. You can say on which energy travels. Or ray is a path on which particles travel. Now, radiation is both energy and particles. The actual stuff. Radiation is the actual stuff which travels on a path. I mean, you can understand it like this. There is a path, and on that path, you are moving. Now, you are radiation, and that path is ray. So, radiation could be particles, it could be energy, light energy, but it is not ray. So, radiation is the light itself and the particles themselves, but ray is actually the path on which they travel. So, this is the difference between ray and radiation. Thank you so much. You're welcome. So, मोहम्मद अली, जो रेडियो एक्टिविटी है, आप अगला आपने कहा जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप. एक्चुअली आपने पहले पूछा कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप. तो आइसोटोप पहले आप समझें कि व्हाट इज एन आइसोटोप. एटम तो आप समझते हैं, जब एक ही एलिमेंट के, आपको पता है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स इन योर पीरियोडिक टेबल, और हर एलिमेंट जो है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है. और वो अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल,
हाइड्रोजन के जितने एटम्स हैं आपको पता है सब में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। तो उसका मास नंबर क्या हो गया? 1 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो उसका मास नंबर भी 1 हो गया और एटॉमिक नंबर भी 1 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। मगर आपको 99.9% तो ऐसे एटम ही मिलेंगे जिनमें एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होगा, बट आपको को 0.1% ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन भी होगा। तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2, तो इसका मास नंबर 2 हो गया, यानी न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने से मास नंबर भी चेंज हो गया। अब आपको 0.01% या 0.1% ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें 2 न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन तो एक ही रहेगा मगर न्यूट्रॉन 2 हो गए। तो 1 प्लस 2 3, तो मास नंबर क्या, एटॉमिक मास या मास नंबर क्या हो गया? 3 हो गया, यानी न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने से मास नंबर भी चेंज हो गया। तो फिर आप आइसोटोप को इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट which have different number of neutrons and as a result different mass number or different atomic mass। ये आइसोटोप। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपको पता है कि 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मगर कोई 1 ऑड एटम ऑक्सीजन का आपको ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन होंगे, और एक ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होगी। इसी तरह और जो एलिमेंट्स हैं उनके भी आइसोटोप्स हैं। तो मोस्टली तो आप ये समझें कि हम जो मास नंबर ऑक्सीजन का लेते हैं 16 लेते हैं, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन 16, मगर कभी कभी 17 भी होता है, 8 प्रोटॉन प्लस 9 न्यूट्रॉन, कभी कभी 18 भी होता है, 8 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन, तो 18 मास नंबर भी होता है। तो लिहाजा आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, होंगे ये ऑक्सीजन के ही सारे एटम या हाइड्रोजन के ही सारे एटम होंगे, मगर उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होगी। तो ये होते हैं आइसोटोप्स। अब चलते हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ। ये रेडियो एक्टिविटी आपने आपकी बुक में भी शायद हो, मैंने आपकी बुक नहीं देखी, होती है अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस सर, अभी हम अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाने से पहले वुड यू बी काइंड एनफ कि एक्सप्लेन कर दें कि ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस है, ये है क्या चीज? अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या चीज है? देखिए, न्यूक्लियस जो है, आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर 2 ही पार्टिकल्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने ऑक्सीजन की मिसाल दी, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ठीक, अब ये अनस्टेबल उस वक्त होगा जब इसमें आप कन्फाइन कर देंगे जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मसलन आप कहते हैं आप लम्स से आए हैं, लम्स में आप पढ़े हैं, अमेरिका से भी पढ़े हैं, तो लम्स की एक बाउंड्री है। लम्स के जो वाइस चांसलर हैं उनसे फर्ज करें इलेक्शन में कोई साहब आते हैं, एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आप लम्स में मुझे जलसा करने दें, आपका प्रिंसिपल जो आपका वाइस चांसलर उसका दोस्त है उसको अलाउ करते जलसा करें, और आपकी जो बाउंड्री है लम्स की उसके अंदर 1000 बंदा आ सकता है। अब जलसा शुरू होता है, वो साहब जो स्टेज पे बैठ जाते हैं और लोग आने शुरू हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं 10,000। ठीक है, अब मुझे बताएं, अगर वो जो बाउंड्री है, जो 4 दीवारी है आपके लम्स, अगर उसमें उसको वो मैं न्यूक्लियस समझूं और मैं ये समझूं कि उसके अंदर 500 प्रोटॉन और 500 न्यूट्रॉन आने थे, टोटल 1000 आने थे, और वहां पे आ गए 10,000, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वहां पे क्या होगा, जो अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, कोई इसको धक्का मारेगा, कोई इसको धक्का मारेगा। ठीक है, तो पुश और पुल वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो अनस्टेबल हो गया। यानी अगर 2-3 तरीके से इनस्टेबिलिटी आ जाती है न्यूक्लियस में। एक तो ये मैंने कहा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, यू हैव कन्फाइंड in a very small place too many protons and too many neutrons. Nucleus is a very small place, तो वो unstable हो गया। या there are
टू मैनी प्रोटॉन्स, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी तादाद थोड़ी है, या देयर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच मोर देन प्रोटॉन्स, तो फिर भी अनस्टेबल हो गया। तीन तरीके से अनस्टेबल हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही बहुत ज्यादा है, उसको कहते हैं फैट न्यूक्लियस, मोटा न्यूक्लियस, ठीक है। और एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, जैसे यूरेनियम है। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन होते हैं, बाकी सारे न्यूट्रॉन है 100 समथिंग, ठीक है। तो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है। और एक ऐसा है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं, इनमें वो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, तो हम उसको कहेंगे अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है मोस्टली आइसोटोप्स, हम कुछ आइसोटोप इसमें देखें ना, एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन में और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। उसका न्यूक्लियस बहुत छोटा है, उसमें इतने आ ही नहीं सकते, तो वो अनस्टेबल हो गया। अब जब वो अनस्टेबल हो गया तो उसकी कोशिश है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। अब उसको स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी करनी पड़ती है। क्या मतलब रेडियो एक्टिविटी? एमिशन ऑफ एनर्जी आर पार्टिकल्स, यानी एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब उस न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, वो एनर्जी जो उसके अंदर है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हुआ है, वो पार्टिकल्स की तादाद जिनकी वजह से वो अनस्टेबल हुआ है, वो एनर्जी और वो पार्टिकल्स उसमें से एमिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो वो स्टेबल होगा। तो स्टेबल होना है उस, ठीक है। अच्छा, वो पार्टिकल्स क्या बाहर निकालेगा? अंदर तो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाहर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही निकलते, तो वो क्या पार्टिकल्स हैं जो बाहर निकलेंगे? सबसे पहली जो फैट मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन भी बहुत है, न्यूट्रॉन भी बहुत है, बड़ा फैट, ठीक है। उसमें से जो पार्टिकल निकलेगा ना, उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल कोई ऐसा पार्टिकल है ही नहीं जो न्यूक्लियस के अंदर हो। न्यूक्लियस के अंदर तो दो ही है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये अल्फा पार्टिकल उस वक्त बनता है जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में फ्यूज कर जाए, कंबाइन कर जाए, ज्वाइन कर जाए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह 4 ब्रिक्स ले लें, 4 ईंटें ले लें, उनको सीमेंट से जोड़कर प्लस्तर करके एक ब्लॉक बना लें 4 ईंटों का, उनमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, और उन चारों को आपने बिल्कुल फ्यूज कर दिया, सीमेंट से जोड़ दिया, एक ब्लॉक बन गया। उस एक ब्लॉक को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हम उसको न्यूट्रॉन नहीं कहेंगे, हम उसको प्रोटॉन नहीं कहेंगे। जो न्यूक्लियस से निकला है वो अल्फा पार्टिकल है, विच इज 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। और आप मुझे बता सकते हैं ये 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स किस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं? 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स, हीलियम से। हीलियम। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस निकला है एक्चुअली, ठीक है सर। ऑन अ लाइटर नोट, एटम्स भी इंसानों की तरह स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। यस, बिल्कुल, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन निकालनी है, अपने अंदर से एनर्जी निकालनी है। वो एनर्जी, जिस एनर्जी ने उसको रेडियो एक्टिविटी, यानी उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, वो उसने उसको एक्टिव कर दिया है, ठीक है ना। तो वो उसने, जब तक वो नहीं निकल जाएगी वो स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अब एक तरह तो ये हो गया अल्फा डीके, जिसको मैंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी की एक ये एग्जाम्पल, और दूसरा है बीटा डीके। अच्छा, बीटा डीके इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब किसी न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और उसकी निस्बत न्यूट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कम है ना। अब वो एटम का न्यूक्लियस स्टेबल ही उस वक्त होगा जब प्रोटॉन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। अब वो प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? जब प्रोटॉन
न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन उस न्यूक्लियस में कम हो गया और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। फर्ज करें ये था ऑक्सीजन का आइसोटोप था, ठीक, उसमें से 8 प्रोटॉन होते हैं उसमें अब 8 प्रोटॉन जो थे उनमें से 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। फॉर एग्जांपल अब वो 8 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन जब वो न्यूट्रॉन बन गया तो प्रोटॉन कितने रह गए? 7 और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 9। अब ये जो 7 प्रोटॉन होते हैं ये किस में होते हैं? नाइट्रोजन में। तो ये नाइट्रोजन बन गया, एलिमेंट चेंज हो गया। सर लेकिन मेरा इधर एक क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से एलिमेंट चेंज हो। यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रोटॉन सर लाइटर एक पार्टिकल है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन, ये कैसे मुमकिन है कि सर उसमें से कोई चीज निकल भी रही है और वो अपने आप को हैवियर पार्टिकल में कन्वर्ट भी कर रहे हैं? न्यूट्रॉन में वेरी थॉटफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। यू आर थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। नाउ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बन गया? यू आर राइट कि न्यूट्रॉन तो हैवियर है प्रोटॉन से। बिल्कुल सर, क्योंकि जो एक न्यूट्रॉन होता है, अगर आप तराजू लें और एक तरफ न्यूट्रॉन रखें और दूसरी तरफ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखें तो फिर तराजू बराबर होगा, बैलेंस फिर होगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है वो हैवियर है प्रोटॉन से। तो अब मैंने कहा जी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, उसमें से कुछ पार्टिकल निकले, कोई एनर्जी निकली, तो वो न्यूट्रॉन बन गया। तो आपका ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि प्रोटॉन से जब कोई पार्टिकल निकलेगा और एनर्जी निकलेगी तो वो तो हल्का हो जाएगा, तो आपने मजीद भारी कर दिया, न्यूट्रॉन बन गया। इसके लिए मुझे बोर्ड पे जाना पड़ेगा, इफ यू अलाउ मी। तो मैं बोर्ड पे जाके आपको ये समझाता हूँ। श्योर सर। मैंने कहा कि ये प्रोटॉन है, अब इसको मैंने न्यूट्रॉन बना दिया और ये न्यूट्रॉन ऐसे बनता है कि इस प्रोटॉन में से एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब प्रोटॉन में से एक पार्टिकल निकला पॉजिट्रॉन, ठीक है, और आप कहेंगे यार इसमें से पॉजिट्रॉन भी निकल गया, ये तो मजीद हल्का हो गया। जी सर। मजीद हल्का होने से ये न्यूट्रॉन कैसे बन गया? इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन और शामिल होता तो फिर इसने न्यूट्रॉन बनना। जी सर। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ये जो पहले तो पॉजिट्रॉन समझिए क्या होता है। ये पॉजिट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसका साइज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, इसका मैस वजन उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, इसमें चार्ज की अमाउंट, मिकदार चार्ज जो इसके ऊपर चार्ज है इसकी अमाउंट उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉन की होती है। सिर्फ एक ही फर्क, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है, ट्विन है। मैं बताता हूं कैसे। दो ट्विन हैं, दो भाई हैं, ट्विन है, दोनों का कद सेम है, सेम स्टेचर है, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम है। कोई बंदा नहीं पहचान सकता कि ये अहमद है और ये अकरम है। दोनों के नाम, एक का नाम अहमद है, एक का नाम अकरम है, मगर इतनी उनकी मुशाबिहत है कि कोई पहचान नहीं सकता कि इनमें से कौन सा कौन है। अपीयरेंस भी सेम है, साइज भी सेम है, कलर भी सेम है, स्किन का हेयर कलर भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, मगर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डिफरेंस, एक काइंड है और एक ईवल है। ठीक है, आप काइंड जो है उसको इलेक्ट्रॉन समझ लें, जो ईवल है उसको पॉजिट्रॉन समझ लें, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, वो भी चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसका भी साइज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, इसका भी वजन उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है। फर्क सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। लिखेंगे इसको भी ई, लिखेंगे उसको भी ई, ठीक है। उस ई के ऊपर नेगेटिव डाल देंगे, इस ई के ऊपर पॉजिटिव डाल देंगे,
तो इसको हम पॉजिट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, अब असल में क्वेश्चन आपका और है, आप कहते हैं यस इसका एक मैस है, वजन है, ये वजन इस प्रोटॉन में से निकल गया, तो ये तो प्रोटॉन से भी कोई छोटी चीज बन जानी चाहिए थी, ये प्रोटॉन से बड़ी चीज न्यूट्रॉन कैसे बन गई? दिस इज योर क्वेश्चन। Yes, sir. Very intelligent question. Now the answer to this question is, have you heard this term energy penalty? नहीं, मैं बताता हूं आपको। मुझे ये बताएं कि इस प्रोटॉन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये न्यूट्रॉन बन जाता है। Yes, sir. अब इस वक्त इसमें से बजाय ऐड करने के मैंने एक निकाल दिया है, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही है ना, Yes. मैंने इसमें से एक निकाल दिया है। अगर इसमें मैं ऐड करता तो फिर न्यूट्रॉन बनना था, Yes, sir. मैंने तो निकाल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इसमें मैं अगर दो ऐड करूंगा तो न्यूट्रॉन बनेगा। इस वक्त ये प्रोटॉन नहीं रहा, इसमें से पॉजिट्रॉन निकल गया, ये प्रोटॉन से भी हल्का हो गया है, Yes, sir. ये कुछ और ही चीज बन गई। तो इसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करूंगा तो फिर न्यूट्रॉन बन जाएगा। यानी इस वक्त इसमें मैं दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूं तो फिर ये न्यूट्रॉन बन सकता है। Yes, sir. ये वहां पे मुमकिन है जहां पे एटम के अंदर एनर्जी पेनल्टी होती है, यानी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेव्ड है ऑलरेडी, वहां पे उसने एटम ने सेव की हुई है दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो इसको मिलती है। और आपको पता है कि आइंस्टाइन कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। वो दो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी वो मैस में कन्वर्ट होके इसको मिल जाती है, तो ये हैवियर हो गया। तो ये हैवी हो गया। जब ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई तो ये न्यूट्रॉन से हैवी हो गया ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती तो न्यूट्रॉन बनना था, इसको दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई तो हैवी हो गया, तो एक फिर इसने निकालना पड़ा ना इसको अंदर से। Yes. वो इसने निकाल दिया और पीछे न्यूट्रॉन बच गया। होप आई एम क्लियर, आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर। Yes, sir. Absolutely. अच्छा, तो इसको अच्छा एक और यहां से पार्टिकल निकलता है, इसको कहते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो। अब आप कहेंगे कि व्हाट इज दिस बला, Exactly. ये न्यूट्रिनो क्या है? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जब पॉजिट्रॉन निकलता है, फर्ज करें कि द एनर्जी ऑफ दिस पॉजिट्रॉन शुड बी 10 यूनिट, ठीक है ना? 10 यूनिट, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है। Yes. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आप बढ़ा दें तो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, उसमें अगर लाइट उसके ऊपर डालें, उसमें फोटॉन उसको हिट करे, फोटॉन अपनी एनर्जी उसमें ऐड करे तो वो हायर ऑर्बिट में चल, तो इसमें एनर्जी होती है। फर्ज करें कि देयर शुड बी 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पॉजिट्रॉन। इसको जब इसमें से निकलना है तो 10 यूनिट एनर्जी के साथ निकलना है, ठीक है? अब जब आप इसको मेजर करते हैं तो कभी तो 10 यूनिट ही एनर्जी इसमें होती है, कभी 7 यूनिट होती है, कभी मेजर करें तो 3 यूनिट होती है, कभी मेजर करें तो 1 यूनिट होती है। इस चीज ने साइंटिस्ट को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि यार ये क्या है कि इसकी तो 10 यूनिट होनी चाहिए, 7 क्यों है, 3 क्यों है? तो इसका हल, सॉल्यूशन, एक फिजिसिस्ट, बहुत मशहूर फिजिसिस्ट है, पॉली एक्सक्लूजन मेथड भी आपने पढ़ा होगा। पॉली जो था उसने इसका हल दिया। उसने कहा एक्चुअली अगर इसकी एनर्जी 7 यूनिट है और 10 यूनिट नहीं है तो वो जो 3 यूनिट का डिफरेंस है ना, वो कोई और पार्टिकल लेके निकल गया है। और उसने कहा कि वो पार्टिकल इनविजिबल है, माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता, घोस्ट है। और उसने उसको नाम दिया घोस्ट का। घोस्ट क्या होता है? भूत। उसने कहा यानी वो हर जगह से, दीवार के अंदर से, इस दीवार के अंदर से भी गुजर जाता है, और
आपको पता है हमारे जिस्म में से एक वक्त में सन से इतने न्यूट्रिनो, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज हमारी बॉडी में से गुजर के पार जा रहे हैं। इस अर्थ में से, अर्थ कितनी मोटी है, 12,800 किलोमीटर मोटी है ना। Yes. इसका डायमीटर इतना ही है ना। सन से जो न्यूट्रिनो आ रहे हैं वो इस अर्थ में से गुजर के पार जा रहे हैं। तो ये न्यूट्रिनो जो है वो, उसने कहा कि एक गोस्ट यानी भूति है ना, जो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर से गुजर के पार चला जाए, इस दीवार में से गुजर के पार भूत ही जा सकता है ना। Yes. तो इसलिए उसने कहा घोस्ट, और उसको नाम दिया उसने न्यूट्रिनो का। ये एक्चुअली अगर तो इसके पूरे यूनिट एनर्जी 10 यूनिट होती फिर तो न्यूट्रिनो का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इसकी एनर्जी उन्होंने मेजर की कि ये 10 नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा कि 10 नहीं है तो ये बाकी जो डिफरेंस एनर्जी का वो ये न्यूट्रिनो घोस्ट पार्टिकल लेके निकल गया है। ठीक है, और ये जो पॉजिट्रॉन है अगर इसमें 10 है तो न्यूट्रिनो फिर भी निकला है, उन्होंने कहा फिर वो 0 यूनिट एनर्जी लेके निकला है घोस्ट मौजूद है। ठीक है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं पॉजिट्रॉन के बारे में। पॉजिट्रॉन जो है जो ही आपकी बॉडी से निकलेगा, ये निकलते ही a few millimeters after emission from the न्यूक्लियस से निकलेगा ना। न्यूक्लियस के अंदर ये हो रहा है ना रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस से निकलते ही फ्यू मिलीमीटर ऐसे इतना सा जाएगा तो आगे ये हिट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों हिट करेंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसको कहते हैं अनाइहिलेशन। ये दोनों तबाह हो जाएंगे। जब ये दोनों तबाह हो जाएंगे तो एनर्जी निकलेगी बड़ी हैवी। ये दोनों तो तबाह हो जाएंगे, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, दे विल बी अनाहिलेटेड, मगर एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी को कहते हैं गैमा रेस। मगर वो एनर्जी पता कि 2 रेस निकलेगी, 2, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये आपस में हिट करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और 2 रेज ऑफ एनर्जी निकलेगी, गैमा रेज होगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अच्छा, ये तो ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस था जिसमें प्रोटॉन ज्यादा थे, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन गया, बीटा पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, इसको कहेंगे बीटा पॉजिटिविटी। अब एक ऐसा एटम भी हो सकता है जिसका न्यूक्लियस इसलिए अनस्टेबल हो कि उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम हो तो फिर न्यूट्रॉन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर प्रोटॉन बन जाएगा। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा तो न्यूट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। फर्ज करें ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन थे, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया, अब 9 प्रोटॉन बन गए। अब मुझे बताएं 9 प्रोटॉन किस में होते हैं? फ्लोरीन में। अब ये एलिमेंट ही चेंज हो गया, फ्लोरीन बन गया, रेडियो एक्टिविटी हुई तो ऑक्सीजन का फ्लोरीन बन गया, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन भी बन गया था, ऑक्सीजन का फ्लोरीन भी बन गया, इसने नाइट्रोजन बना दिया था। अब न्यूट्रॉन जो है जब वो प्रोटॉन बनेगा तो वो उसको फ्लोरीन बना दे। ठीक है, वो कैसे होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। ये न्यूट्रॉन है, इसका प्रोटॉन बना कैसे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला बीटा नेगेटिव, ये इसका ट्विन ब्रदर है। ठीक है, ये काइंड नेचर्ड है, ये इवल नेचर्ड है। दोनों सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी भी फर्क है। तो ये और एक इसमें से पार्टिकल निकला एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का एंटी मेटल, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी घोस्ट पार्टिकल है। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो ये है। ठीक है, ये भी घोस्ट पार्टिकल है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो था, अगर इसकी 10 यूनिट एनर्जी थी, 10 यूनिट एनर्जी होनी चाहिए थी जब ये न्यूट्रॉन में से निकला, और 10 नहीं थी 7 थी,
तो 3 यूनिट एनर्जी ये एंटी न्यूट्रिनो लेके निकल गया। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये ऐसे इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो घोस्ट हैं, जो पहाड़ों से भी, पत्थरों से भी, आयरन से भी, लोहे से भी, जमीन से भी, हर जगह से गुजर जाते हैं, जैसा भूत गुजर जाता है। ठीक है, तो अब इसमें तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि न्यूट्रॉन हैवियर है, न्यूट्रॉन इसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही है ना। आप तराजू के एक पल्ले में न्यूट्रॉन रख दें, एक पल्ले में प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रख दें, तो तराजू बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये एंटी न्यूट्रिनो जो है वो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेके निकला है ना, वो तो समझिए उसका पार्ट ही है, तो इसलिए इसमें तो बड़ा क्लियर है। तो ये हो गया आपका बीटा माइनस डीके, ये हो गया बीटा प्लस। ये कहां पे था, जहां प्रोटॉन ज्यादा थे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, और ये हो गया जहां पे न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके, और इसमें आपके कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। और ये न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं थे, जिस तरह अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर नहीं था, ये न्यूक्लियस के अंदर तो आपके एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वहां पे तो कोई सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन ये वो नहीं है, ये उनके अंदर से निकले हैं ना बेसिकली। ठीक है, तो जब ये निकल जाएंगे, एनर्जी निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, एनर्जी लेके निकल गया, ठीक है, एंड कुछ एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो लेके निकल गया, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल हो गया, ठीक हो गया, मगर एलिमेंट चेंज हो गया, नया एलिमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा अब एक और है गैमा डीके। अच्छा, ये जो दोनों पहले डीके थे ना, अल्फा डीके और बीटा डीके, इसमें तो पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल निकल गया, और बीटा डीके में बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन निकल गया और न्यूट्रिनो निकल गया, और बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन निकल गया और एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। मगर गैमा डीके में क्या निकलता है, कोई पार्टिकल नहीं निकलता, कोई। जब ये सारा कुछ अंदर हो रहा होता है और न्यूक्लियस डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर इतनी मार कुटाई हो रही है कि प्रोटॉन में से एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, एक न्यूट्रिनो निकल रहा है, और उसका न्यूट्रॉन बन रहा है, तो वो न्यूक्लियस बेचारा वाइब्रेट कर रहा है, उसमें अनस्टेबल हो रहा है, इनके निकलने से उसमें इरताश, इनस्टेबिलिटी उसमें आ रही है। उस इनस्टेबिलिटी को न्यूक्लियस कम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि एनर्जी निकालेगा, वो एनर्जी की वजह से ही कर रहा है। वो एनर्जी जो है वो रेज की शक्ल में निकलेगी, उनको कहेंगे गैमा रेज। जब वो गैमा रेज निकल जाएंगी तो वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बना, कोई अल्फा पार्टिकल बाहर नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं बताता हूं आपको, बेल है, आपने बेल बजाई तो वो ऐसे ऐसे कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। वो वाइब्रेट करना कब बंद करेगी, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, यानी उसमें से जो आवाज निकलती है रिंग की, ठीक है, जब वो रिंग निकल जाएगी, आवाज निकल जाएगी, तो एनर्जी निकल जाएगी, तो वो खामोश हो जाएगी। तो आप ये समझें कि जो गैमा रेज है वो रिंग है, वो साउंड ऑफ द रिंग है, ठीक है, वो बेल की साउंड है गैमा रेज। जब वो निकल जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये गैमा डीके है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है जी सर, एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी कवर नहीं हुई। रेडियो एक्टिविटी में देयर आर फर्दर डिटेल्स, बहुत चीजें समझने वाली हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, वो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करते हैं तो वो इकट्ठे कैसे पड़े, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। तो इसका मतलब वहां पे कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो उनको जोड़ के रखे, उसको कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, जो उनको जोड़ के रखती है।
फिर ये डिके के लिए भी एक फोर्स चाहिए जो ट्रांसफॉर्म करती है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में। इसके लिए एक फोर्स चाहिए, उस फोर्स को कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसका काम होता है टू ट्रांसफॉर्म वन पार्टिकल इनटू अनदर पार्टिकल, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म करना, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म करना। तो ये व्हाट इज दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, how do they interact with one another inside the nucleus? So this is a complicated thing. I think I should leave it to the next episode. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं ये समझाऊंगा। हो सकता है मुझे 2 लेक्चर और लेने पड़े। बट जी मोहम्मद अली, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। जहां तक रेडियो एक्टिविटी का डिके का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आ गया होगा। और रेस्ट जो डिटेल है, इफ यू वांट टू बिकम अ रियल साइंटिस्ट, केमिस्ट और फिजिसिस्ट, तो फिर मैं अगली वीडियोस में बाकी का पार्ट जो है वो कवर करूंगा। अल्लाह हाफिज।